بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اسلامیات، باب صوم، سیرت طیبہ، عنوان نمبر 10، مسجد نبوی کی تعمیر، صفحہ نمبر 40-41۔ بیٹا آج ہم اسلامیات کا جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے مسجد نبوی کی تعمیر۔ بیٹا آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، اس کی بلند خوانی کرنی ہے۔ میں آپ کو اس کی اہم باتیں بتاؤں گی، یعنی مسجد نبوی کہاں ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی، یہ جگہ کس کی ملکیت تھی، اور اس کے بارے میں اہم اور ضروری باتیں آپ کو بتاؤں گی، اور نماز اور تلاوت کے علاوہ کون سے اجتماع ہوتے تھے وغیرہ۔ تو بیٹا ہجرت مدینہ یعنی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری کے ہاں ٹھہرے اور سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کے بارے میں سوچا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس جگہ پر بیٹھی تھی وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے لیے بہت پسند آئی تھی۔ اب یہاں پر کہ اونٹنی کہاں بیٹھی تھی، یعنی اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے، گھر کے قریب بیٹھی تھی، اور یہ جگہ کس کی ملکیت تھی؟ یہ جگہ 2 یا 3 بچوں ساحل اور سہیل کی تھی، لیکن وہ بچے اس جگہ کو بغیر کسی قیمت کے مسجد کے لیے دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کی قیمت ادا کر کے یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اور اس مسجد کی تعمیر میں تمام صحابہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا۔ یہی مسجد مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ اور بیٹا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مسجد کیسے بنی تھی، کن کن چیزوں سے بنائی گئی تھی۔ تو یہ مسجد ہمارے صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بناتے اور لگاتے تھے، اور اس وقت جو مسجد تعمیر ہوئی تھی وہ انتہائی سادہ مسجد تھی، اور اس کی دیواریں جو تھی وہ کچی اینٹوں کی تھی۔ اس کے جو ستون، یعنی کہ جب کسی بھی دیوار چیز کو بناتے ہیں، کوئی بھی مکان ہے یا مسجد ہے، جو اس کے ستون ہوتے ہیں یعنی کہ جو اس کے پیلر ہوتے ہیں وہ جو تھے وہ کھجور کے تنوں کے تھے، یعنی کھجور کی جو جڑیں ہوتی ہیں، تنے جو تھے ان کے تھے، اور اس کی جو چھت تھی وہ چھت کھجور کے پتوں کی تھی۔ اور اس مسجد کے صحن میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا تھا۔ اب چبوترا ہوتا ہے یہاں پر چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، اور ایسی جگہ مربع اور مستطیل یعنی جس کے چاروں کونے برابر ہوں، وہ جگہ غریب اور نادار لوگ جو مستحق لوگ تھے، جو تعلیم اور تربیت کے لیے ان کے لیے بنائی گئی تھی، جو آج بھی صفا کے نام سے مشہور ہے۔ اور مسجد نبوی مہاجرین یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار یعنی جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کی دوستی اور اسلام کی سربلندی کا ایک مرکز بھی بنی تھی۔ اور بیٹا میں آپ کو بتاؤں کہ مسجد نبوی جو تھی وہ صرف باجماعت نماز ادا کرنے یا ذکر و عبادت تلاوت کرنے کی جگہ ہونے کے علاوہ ایک اجتماعی مرکز بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت اسی مسجد میں گزارتے تھے، اور تمام صحابہ کو تعلیم دیتے اور باہر سے آنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے، اور اس کے علاوہ اور بھی یہاں پہ بہت سے اجتماع ہوتے تھے، مثلاً عدالتیں
जो भी अदालतें होती थी, जो भी अदालत होती थी, वो इसी मस्जिद में होती थी, मस्जिद नबवी में। और तमाम फैसले इसी मस्जिद में यहीं पर किए जाते थे। और मसलन जहाद के लिए ऐलान और जहाद के लिए अतिया जमा करना और जहाद के लिए लश्कर भेजना सब कुछ इसी मस्जिद में होता था। और दूसरे इलाकों से आने वाले वक्त यानी कि जो चंद रहनुमा आते थे, जो भी आते थे, वो इसी मस्जिद में ठहरते थे और उनकी मेहमान नवाजी का बंदोबस्त भी यहीं पर किया जाता था। यहाँ पर ये तमाम इज्तिमा जो होते थे ये इसी मस्जिद में होते थे। और लेकिन ये मस्जिद आज भी दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के लिए अमन, रवादारी, प्यार, मोहब्बत, सियासी बसीरत और हिकमत अमली की एक मिसाल है। यही वो जगह है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी फलाई रियासत की बुनियाद रखी थी। यानी कि यहाँ पर एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई थी और दुनिया को एक बेहतरीन मशरती, माशी और कानूनी इखलाकी निज़ाम दिया था। लेकिन जो जो वक़्त गुजरता गया, मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई, तो उस बढ़ती हुई आबादी और ज़रूरत के मुताबिक मस्जिद नबवी की तामीर की ज़रूरत तोसी की जब ज़रूरत पेश आई तो इसकी तोसी यानी इसकी तामीर का सिलसिला जारी हुआ, जो आज भी ये तामीर और तोसी का सिलसिला जारी है। तो बेटा ये इसकी चंद अहम बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब बातों की समझ आ गई होगी। आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है, इसकी बुलंद ख्वानी करनी है। इस सबक के मुतालिक मैं आपसे चंद सवालात पूछती हूँ। नंबर 1, मस्जिद नबवी की जगह किसकी मलकियत थी? शाबाश, 2 यतीम बच्चों साहिल और सुहेल की मलकियत थी। मस्जिद नबवी की छत किस चीज से बनी थी? शाबाश, खजूर के तनों से। सवाल नंबर 3 है, इस मस्जिद में क्या क्या इज्तिमा होते थे? कौन से इज्तिमा होते थे? शाबाश, अदालत मस्जिद में होती थी, फैसले मस्जिद में किए जाते थे, जहाद के लिए ऐलान मस्जिद में होता था और जहाद के लिए लश्कर भी यहीं से इसी मस्जिद से भेजे जाते थे। शाबाश। तो बेटा जब आप इस सबक की पढ़ाई कर लेंगे, इसकी बुलंद ख्वानी कर लेंगे, तो जो सवालात मैंने आपसे पूछे हैं इन सब के जवाबात आपको इसी सबक से मिलेंगे। अब हम अपनी मश्क की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर 41 पर हमारी मश्क है। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। सवाल नंबर 2 है, सवालात के जवाब लिखिए। और सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पूरी कीजिए। तो बेटा इसका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 आप अपनी किताब पर करेंगे और सवाल नंबर 2 सवालात के जवाब ये आप अपनी कॉपी पर खुद खत करके लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो हम अपने किताब के सफ़ा नंबर 41 में सवाल नंबर 1 की तरफ आते हैं। दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। नंबर 1, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में क़याम किया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के घर, हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर, हजरत मुआज़ बिन रज़ियल्लाहु अन्हु के घर। किसके घर? शाबाश, हजरत अयूब अंसारी के घर। नंबर 2 है, मस्जिद नबवी में गरीब सहाबा के क़याम और तालीम और तरबियत के लिए तामीर किया गया चबूतरा कहलाया सफ़ा, अक्सा या हरम? शाबाश, सफ़ा। नंबर 3 है, मुसलमानों के तमाम इज्तिमाई मामलात तय होते थे मस्जिद अक्सा में,
मस्जिद नबवी में, मस्जिद कुबा में। मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी मरकज बनी इस्लाम की सरबलंदी का, इस्लाम की फतूहात का, इस्लाम की तालीमात का, इस्लाम की सरबलंदी का। नंबर 5 है मस्जिद नबवी की तामीर और तोसी का सिलसिला जारी है, आराइश और ज़ेबाइश के लिए, जदीद फन तामीर की अक्कासी के लिए। नंबर 3 मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद के लिए, मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद के लिए। तो बेटा ये हमारा सवाल नंबर 1 था। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। खाली जगह पूर कीजिए। नंबर 1 है मस्जिद नबवी की तामीर में तमाम डैश और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया। तो खाली जगह में क्या आएगा? तमाम सहाबाए किराम। नंबर 2 है मस्जिद की तामीर इंतहाई डैश थी, सादा थी। नंबर 3 है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज्यादातर वक्त डैश में गुजारते थे, मस्जिद नबवी में। नंबर 4 दूसरे इलाकों से आने वाले डैश मस्जिद नबवी में ठहराए जाते थे, वफ्द। नंबर 5 मस्जिद नबवी ही वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डैश रियासत की बुनियाद रखी, इस्लामी फलाई रियासत। तो बेटा ये था हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 आपने अपनी किताब पर करने हैं। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवालात के जवाब लिखिए। नंबर 1 है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद किस काम की तरफ फौरन तवज्जो फरमाई? इसका जवाब देखते हैं। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की तामीर की तरफ तवज्जो फरमाई। नंबर 2 है जिस जगह मस्जिद नबवी तामीर हुई वो किसकी मलकियत थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जगह कैसे हासिल की? मस्जिद नबवी की ये जगह 2 यतीम बच्चों साहिल और सुहेल की थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत अदा करने के बाद ये जगह हासिल की। नंबर 3 है मस्जिद नबवी की तामीर पर नोट लिखिए। तो मस्जिद नबवी की तामीर में तमाम सहाबा किराम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया। वो अपने हाथों से ईंटें बनाते और लगाते। उस वक्त जो मस्जिद तामीर हुई वो इंतहाई सादा थी। इसकी दीवारें कच्ची ईंटों की, सतून खजूर के तनों के और छत पत्तों की थी। इसके सहन में नादार और गरीब सहाबा के क़याम और तालीम और तरबियत के लिए एक चबूतरा तामीर किया गया जो सफ़ा के नाम से आज भी मशहूर है। हमारा सवाल नंबर 4 है मस्जिद नबवी मुसलमानों के लिए एक इज्तिमाई मरकज की हैसियत क्यों रखती थी? सवाल नंबर 4 मस्जिद नबवी बाजमात नमाज और तिलावत, जिक्र और इबादत और तालीम और तरबियत की जगह होने के अलावा मुसलमानों का एक इज्तिमाई मरकज भी थी, क्योंकि मुसलमानों के तमाम इज्तिमाई मामलात मस्जिद नबवी में तय होते, अदालतें मस्जिद में लगती और फैसले भी यहीं किए जाते थे। जहाद के लिए ऐलान मस्जिद में होता और जहाद के लिए लश्कर यहाँ से भेजे जाते। दूसरे इलाकों से आने वाले वफ्द भी मस्जिद में ठहराए जाते और इनकी मेहमान नवाजी का बंदोबस्त भी यहीं किया जाता था। आज का हमारा आखिरी सवाल है सवाल नंबर 5 मस्जिद नबवी की तौसीफ की ज़रूरत क्यों पेश आई? मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद और ज़रूरियात के मुताबिक मस्जिद नबवी की तामीर और तौसीफ की ज़रूरत पेश आई। तो बेटा ये था हमारा आज का सबक।
جو میں نے آپ کو پڑھایا، مجھے امید ہے کہ آج کا پڑھایا گیا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے۔ ہدایات، سوال اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 3 اپنی کتاب پر کرنا ہے، اور سوال نمبر 2 سوالات کے جواب اپنی کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ شکریہ۔